سب سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال فرما گئے۔ ان کو تشویشناک حالت میں نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر ڈاکٹرز نے طبی معائنے کے بعد عامر لیاقت کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ عامر لیاقت کے ملازم کے مطابق ان کی گزشتہ رات طبیعت خراب ہوئی تھی، ان کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی، انہیں اسپتال جانے کا کہا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق عامر لیاقت حسین کو ان کے گھر خداداد کالونی سے ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت کو مردہ حالت میں ہسپتال لایا گیا۔ عامر لیاقت کے ڈرائیور نے پولیس کو طبیعت خرابی کی اطلاع دی اور بتایا کہ ان کے کمرے سے گزشتہ روز چیخنے کی آوازیں بھی آئیں۔ پولیس کے مطابق عامر لیاقت کے گھر بجلی نہیں تھی، جس کی وجہ سے جنریٹر چل رہا تھا اور گھر میں جنریٹر کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت کے گھر سے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں، ان کے ملازمین اور ڈرائیور سے بیانات لیے جائیں گے۔ ڈی آئی جی ایسٹ مقدس حیدر کے مطابق عامر لیاقت کا انتقال ہسپتال منتقلی سے آدھے گھنٹے قبل ہوا۔ عامر لیاقت کے جسم پر کوئی تشدد کے نشان نہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی لاش کو نجی اسپتال سے جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پوسٹ مارٹم کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کی گئی۔ تاہم عامر لیاقت کے اہل خانہ نے فی الحال پوسٹ مارٹم سے انکار کر دیا۔ اہل خانہ کے مطابق بیٹے کے لندن سے وطن پہنچنے پر پوسٹ مارٹم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پوسٹ مارٹم نہ ہونے کی صورت میں عامر لیاقت کی میت کو چیپا سد خانے منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ الطاف حسین کے مطابق موت کی وجہ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد معلوم ہو سکے گی۔ گھر سے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی میت کو جناح اسپتال سے سرد خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ ادا کر دی جائے گی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جاوید قائم خانی سے۔ جاوید، انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، وقت کا بھی تعین ہو چکا ہے، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ بالکل جی، انتظار تھا عامر لیاقت کے بیٹے کا جو ملک سے باہر لندن میں پڑھائی کے سلسلے میں مقیم ہے وہاں پر، تو ان کی آمد کے حوالے کے بعد جو ہے وہ ان کی تصدیق ہوئی ہے کہ وہ کل صبح 11 بجے تک جو ہے ان کی فلائٹ کنفرم ہوئی ہے کہ کراچی پہنچ جائیں گے۔ ان کے پہنچنے کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ حوالے سے تفصیل اور دیگر انتظامات جو ہے وہ پہلے ہی مکمل کر لیے گئے تھے۔ عبداللہ شاہ غازی کے احاطے میں جو قبرستان ہے وہاں پر ان کی یہ قبر کی تیاری جو ہے اس کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے تھے اور قبر کی الاٹمنٹ اور دیگر جو چیزیں تھیں تمام تر جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے مکمل کی گئی تھی۔ ان کی لاش کو جو ہے وہ سرد خانے رکھا گیا اور وہاں سے جو ہے وہ ان کے گھر منتقل کیا جائے گا جب ان کے بیٹے کی آمد ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ کے لیے نماز جمعہ کے بعد کا وقت مقرر کیا گیا۔ عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ بعد نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کی تدفین کے لیے قریب یعنی کہ جو عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاطے میں قبرستان ہے وہاں پر جو ہے انہیں سپرد خاک کیا جائے گا۔ انتظار ان کے بیٹے کا تھا۔ ان کے بیٹے جو ہے ملک سے باہر مقیم ہے، پڑھائی کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے۔ ان کی خبر جو ہے وہ آج صبح ہی تصدیق کی گئی تھی۔ اسپتال لانے کے بعد ڈاکٹرز نے ریسکیو عملے کے ذریعے چوکیدار نے جو ہے وہ انفارم کیا کہ جو ہے وہ اپنے کمرے کے اندر بے ہوشی یا نیند بے ہوشی کی حالت میں، جس کے بعد اسپتال روانہ کیا گیا اور اسپتال پہنچ کر جو ہے ڈاکٹرز نے ان کی طبی موت کی جو ہے وہ تصدیق کی۔ ان کی موت کی تصدیق کے بعد جو ہے وہ جو خبر جب سرکولیٹ کیے تو تمام لوگوں کا ان کے گھر آمد کا سلسلہ جاری رہا، رشتہ دار اور اس کے علاوہ وزیر اعظم اور تمام اعلیٰ جی ٹھیک ہے جاوید قائم خانی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایم این اے عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم تاحال نہیں ہو سکا۔ رمضان چھیپا کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت کی تدفین کے انتظامات وہ خود کریں گے۔ مرحوم کو بعد نماز جمعہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں دفن کیا جائے گا۔ لیاقت کا انتقال کیسے ہوا، وجہ تاحال سامنے نہ آ سکی۔ ایس ایس پی ایسٹ اور پولیس کرائم سین یونٹ نے گھر پہنچ کر عامر لیاقت کے زیر استعمال اشیاء کے نمونے حاصل کر لیے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ ہے، ہم لوگوں نے مشترکہ ہماری جوائنٹ ٹیم ہے اور ہم لوگوں نے وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کر لیا ہے۔ جس طرح کہ آپ کو بتایا ہے کہ ان کی باڈی واز ریسیو ڈیڈ ایٹ آغا خان۔ حکومت سندھ کی جانب سے عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کی سربراہی میں 3 رکنی میڈیکل کمیٹی بنا دی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جناح اسپتال ڈاکٹر شہنیلا کے مطابق عامر لیاقت کی فیملی نے فی الحال پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ سب لوگ یہاں پہنچ گئے تھے بٹ فیملی کی اجازت نہ ہو تو کسی کی پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتے اس طرح پوسٹ مارٹم۔ اگر ان کی جو بیٹا ہے جائز جو ان کا وارث ہے وہ اگر اجازت دیں گے تو اس کے بعد ہی ہم لوگ پوسٹ مارٹم
दूसरी जानिब समाजी रहनुमा रमजान छिपा का कहना था कि आमिर लियाकत की वसीयत के मुताबिक उनकी तदफीन के इंतजामात वो करेंगे। ये तदफीन के लिए देखें, अभी जब हम छिपा सरखाने पहुँचेंगे तो इनके कुछ फैमिलीज़ के जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, तो सलाह मशवरा करके जो है फिर इंशाअल्लाह ताला बताएंगे आपको। खानदानी ज़राए के मुताबिक आमिर लियाकत की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में की जाएगी। रुकन कौमी असम्बली मरहूम आमिर लियाकत हुसैन के घर से क्राइम सीन यूनिट वापस रवाना हो गया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम का घर सील कर दिया गया। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन वहाँ पर मौजूद हैं। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं खुदादाद कॉलोनी में वाक़ मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत के घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर दिन भर की सूरत हाल के हवाले से आगाह करूँ तो यहाँ पर क्राइम सेल यूनिट मौजूद था, जिन्होंने उनके कमरे और उनके दफ्तर को जो है सील कर दिया गया है आर्जी तौर पर, और तफ्तीशी हुक्काम जो है उनके घर से शवाहिद इकट्ठा करके ले जा चुके हैं और लैब टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। उसकी रिपोर्ट में तफ्तीश सामने आ सकेगी। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिन भर सियासी समाजी शख्सियात की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी रहा। बड़ी तादाद में लोग आए, उनसे मोहब्बत करने वाले जो शहरी थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने उनके ख़ानदान वालों से ताज़ियत की, जिसमें उनके भतीजे और उनकी साबका अहलिया बुशरा और उनकी बेटी भी यहाँ पर आई थी, जिनसे लोगों ने ताज़ियत करी। अभी बताया जा रहा है उनके जो बेटे हैं अहमद, जो कि बैरून मुल्क में मुकीम है, वो आज सुबह जो है कराची पहुंच जाएंगे, जिसके बाद उनकी नमाज तयन किया जा सकेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में बहुत शुक्रिया शाहजेब हुसैन आपका। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपनी जिंदगी में शोहरत की बुलंदियों पर रहे। वो बैक वक्त टीवी मेजबान, मजहबी स्कॉलर, सेलिब्रिटी और सियासतदान थे। बैक वक्त सेलिब्रिटी, मजहबी स्कॉलर, टीवी मेजबान और सियासतदान, सलाहियतों में जिनका कोई सानी न था, आमिर लियाकत हुसैन अब हम में नहीं रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को कराची में सीनियर सियासतदान शेख लियाकत हुसैन के घर पैदा हुए। उनके वालिद भी 1997 में MQM की तरफ से रुकने कौमी असम्बली रहे। आमिर लियाकत हुसैन तालीम मुकम्मल करने के बाद बतौर टीवी मेजबान मुतारिफ हुए, जिसके बाद मजहबी, रमजान नशरियात और इंटरटेनमेंट समेत मुख्तलिफ नौयत के प्रोग्राम की मेजबानी का एजाज हासिल किया। आमिर लियाकत हुसैन ने पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल से की, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। ताहम ये ताल्लुक 2020 में तलाक पर मुंतज हुआ। 2018 में दूसरी शादी तूबा से की। सैयदा तूबा रमजान ट्रांसमिशन में आमिर लियाकत हुसैन के साथ बतौर मेजबान भी नजर आई। ताहम रवा साल फरवरी में तूबा अनवर ने खुला ले ली, जिसके बाद 5 फरवरी को आमिर लियाकत हुसैन ने 18 साल दानिया नामी लड़की से शादी की, जो तलाक पर खत्म हुई। दानिया से तलाक के बाद आमिर लियाकत हुसैन कई तनाज़ुआत और शदीद डिप्रेशन का भी शिकार रहे। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की निजी जिंदगी हमेशा तनाज़ात का शिकार रही। आमिर लियाकत ने 3 शादियां की, जो कि नाकाम साबित हुई। आलिम ऑनलाइन में खुश आमदीद और नाज़रीन इकराम, अब प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। इतनी इश्क की और मोहब्बत की और अकीदत की बातें हुई हैं कि अब मज़ीद गुफ्तगू अगर की जाएगी तो फिर वो जो की गई गुफ्तगू उसका हुस्न बिखर जाएगा। उस हुस्न को अपने अज़हान की ठंडक में फ्रीज करके रखना है ताकि वो ज़ाया ना हो सके। आमिर लियाकत को जितनी शोहरत मिली वो उससे कई गुना ज्यादा तनाजात में घिरे रहे। अपनी दिलकश गुफ्तगू से दिलों में घर करने वाले आमिर लियाकत अपना घर सही तरह से संभाल न पाए। आमिर लियाकत ने 3 शादियां की। पहली शादी सैयदा बुशरा आमिर से की, जिनसे 2 बच्चे हैं। ताहम ये शादी 2020 में इख्तिताम पजीर हुई। आमिर लियाकत ने 2018 में दूसरी शादी तूबा से की। सैयदा तूबा रमजान ट्रांसमिशन में आमिर लियाकत के साथ बतौर मेजबान भी नजर आई। ताहम रवां साल फरवरी में तूबा अनवर ने खुला ले लिया। रुकने कौमी असम्बली ने रवां साल 5 फरवरी को 18 साल दानिया नामी लड़की से तीसरी शादी की, जिसके चंद रोज बाद ही दोनों में कशीदगी शुरू हुई और मामला अदालत तक पहुंच गया। दानिया और आमिर लियाकत में कशीदगी के बाद कई मुतनाज़ा वीडियोस और व्हाट्सएप चैट भी मंजर आम पर आई, जिससे आमिर लियाकत शदीद ज़हनी अजियत का शिकार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने MLA आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और डॉक्टर आसिम हुसैन ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस और ताज़ियत की। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया।
बताएं जिला अस्पताल में नए बेड्स का इजाफा हो गया। बिस्तरों की गुंजाइश 1100 से बढ़ाकर 2208 कर दी गई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। महकमा सेहत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं जिला अस्पताल में नए बेड्स का इजाफा हो गया है। बिस्तरों की गुंजाइश 1100 से बढ़ाकर 2208 कर दी गई है। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका लग गया। नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली 7 रुपये 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी 2 मुख्तलिफ सहमाई एडजस्टमेंट की मद में दी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए विफाकी हुकूमत को भी भिजवा दिया है। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका। शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। पड़ेगा जी, बोझ तो पड़ेगा, 7 रुपये यूनिट पे तो पड़ेगा भाई। नहीं, जाती है मुल्क के साथ जाती है, कौम के साथ जाती है, तो इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। कब तक होता रहेगा? आवाम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो इस वजह से कि आपके सामने ही है, हालात ऐसे चल रहे हैं, महंगाई आसमान पे पहुंची हुई है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत मसला हो गया है। कौन करेगा? एक तो हमारी सैलरी इतनी नहीं है कि जो हम आदमी पूरा अखराजात कर सके घर के, और ऊपर से बिजली में और लोड शेडिंग तो बेहद जारी है। रात को 2 बजे जाके 5 बजे आ रही, और महंगाई हाँ यूनिट अलग बढ़ा दी। लोग परेशान हो रहे हैं, बदवाएं दे रहे हैं, और क्या है, बदवाएं दे रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से भरे? किराया दे, दिन में 1000 रुपये कमाते, किराया दें या बच्चों को खिलाएं, किसको दें? KCL को दें? हम तो बोलते हैं मीटर ले जाओ उतार के। सनतकार डीजल 60 रुपये फी लीटर महंगा होने से किराए बढ़ने और बिजली महंगी होने पर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। बरामद कुनिंदगान ने कहा है कि किराए बढ़ते हैं तो इसका बोझ सार्फिन पर ही जाता है। हुकूमत ने इंडस्ट्री की बिजली महंगी कर दी। अब 43 रुपये फी यूनिट में इंडस्ट्री कैसे चलेगी? फी लीटर डीजल 60 रुपए महंगा होने से गुड ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। साथ ही हुकूमत ने IMF के दबाव पर बिजली का बेस टैरिफ 7 रुपए 91 पैसे महंगी कर दी, जिससे सनतकार भी परेशान दिखाई दिए। टोंगी इंडस्ट्री एरिया के बरामद कुनंदगान अफीफ राशिद का कहना है कि अब तक डीजल 60 रुपए फी लीटर महंगा होने से गुड ट्रांसपोर्टर के किराए भी 60% बढ़ चुके हैं। ये भी कहा कि किराए बढ़ने से सनती लागत में इजाफा हो जाता है और इसका बराह रास्त असर सार्फिन पर ही मुंतकिल होता है। देखिए, किराए बढ़ रहे हैं, किराए बढ़ने पड़ेंगे। जब हमारा 60 रुपये डीजल बढ़ जाएगा विद इन 10 डेज, तो ऑब्वियसली ये हमारी कॉस्ट तो बढ़ेगी। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना, हमें ये देखना पड़ेगा। एक तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो होगी, और जो फाइनल इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है वो एंड कंज्यूमर पे आता है। जब भी हम ऐसी इन्फ्लेशन देखते हैं तो उसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो एंड कंज्यूमर पे आता है, क्योंकि हमारी जब कॉस्ट बढ़ी होगी हम उसी हिसाब से अपने कस्टमर की प्राइसिंग बढ़ा रहे होंगे। बरामद कुनंदगान ने कहा कि हुकूमत ने बिजली का बेस टैरिफ 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया और एक अंदाजे के मुताबिक अब इंडस्ट्री को फी यूनिट बिजली 43 रुपए तक मिलेगी। इतने महंगे बिजली और गैस रेट पर कैसे सनतें चलेंगी, ये भी सोचा जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, अराउंड मेरे ख्याल से 30% से ज्यादा बिजली का रेट भी बढ़ जाएगा इस पे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 43 के करीब इसका फिगर आ रहा है कि 43% इंक्रीज हो जाएगा हमारा बिजली विद टैक्सेस और ड्यूटीज। बरामद कुनंदगान ने कहा कि हमको बहुत पहले सस्ती बिजली पे मुंतकिल हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुए। अभी भी हम फर्नेस ऑयल डीजल से महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं। अफीफ राशिद ने कहा कि अगर अब भी लंबे अरसे की प्लानिंग ना की तो हमेशा पाकिस्तान इन्हीं मुश्किलात में फंसा रहेगा। के इलेक्ट्रिक शहरियों को रिलीफ देने की बजाय मजीद सताने लगी। शहर में बिजली बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। उस्मानी कॉलोनी जेल चौरंगी के मकीन लोड शेडिंग पर शदीद बरहम हो गए। कराची वालों को दोहरी अजियत का सामना। सख्त गर्मी के मौसम में के इलेक्ट्रिक शहरियों को रिलीफ फराहम करने के बजाय मजीद सताने लगी। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी के सताए उस्मानी कॉलोनी जेल चौरंगी के मकीनों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है, रात में भी सोने नहीं दिया जाता। दिन में 16 से 17 घंटे बिजली बंद रहती है। बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। रात में बहुत परेशान करते हैं, मच्छर सार परेशान होता है, नींद नहीं आता है, कभी बिजली चला जाता है, कभी आ जाता है। इतनी लोड शेडिंग है कि छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। आवाम का तो टोटल बेड़ा घर के करा हुआ है। इसके अलावा हमारा खुद पकवान सेंटर का काम है, जो कि गैस इतनी आती है कि मोमबत्ती हम कमा लें या गैस भरवा लें। रात में भी सूरत हाल है, कभी 3 बजे बंद करते हैं तो सुबह 7 बजे आती है। अब बताओ बच्चे कहाँ जाएंगे?
इन लोगों को इतना तो एहसास हो, खुद तो बैठे एसी के अंदर, मगर दूसरे का तो ख्याल करें। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि बिजली की बंदिश का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया है। शहर में बिजली की सप्लाई 2750 मेगावाट की जा रही है, जबकि 400 मेगावाट तक शॉर्टफॉल का सामना है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हैं। कैमरामैन अजमल शाह के साथ हबीब खान, सिटी 21। सोई सदरन गैस ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक ने कल से अब तक कोई अदायगी नहीं की। के इलेक्ट्रिक की गैस सप्लाई कमी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। के इलेक्ट्रिक का सोई गैस को वाजिबात की अदायगी का मामला हल न हो सका। सोई सदरन गैस हुकाम के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की जानिब से अदायगी नहीं की जा सकी। हुकाम का कहना है कि सोई सदरन गैस ने दरामद LNG सप्लाईज को भी अदायगी करना है और इस मामले पर विफाकी हुकूमत से मुसलसल राबिते में है। अदायगी न होने पर मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अब आपको बताएं, औकातकार के हवाले मार्केट, शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स के एसोसिएशन और सिंध हुकूमत के दरमियान मज़ाकरात हुए। बेनतीजा मज़ाकरात खत्म हो गए। कमिश्नर कराची ऑफिस में होने वाले इजलास में ताजिरों ने 8 बजे मार्केट, शादी हॉल 10 बजे और रेस्टोरेंट्स को 11 बजे बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। आपको बता रहे हैं, औकातकार के हवाले से मार्केट, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स की एसोसिएशन और सिंध हुकूमत के माबैन मज़ाकरात हुए और ये मज़ाकरात बेनतीजा ही खत्म हो गए। कमिश्नर कराची ऑफिस में होने वाले इजलास में ताजिरों ने 8 बजे मार्केट्स, 10 बजे शादी हॉल्स और 11 बजे रेस्टोरेंट्स को बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। आपको बता रहे हैं, सिंध हुकूमत और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के दरमियान मज़ाकरात हुए जो कि बेनतीजा खत्म हो गए। मुर्तज़ा वहाब का रात गए आई चंद्रीगर रोड का दौरा। DG KDA, डिप्टी कमिश्नर और दीगर भी हमरा थे। फ्लाईओवर की तज़ीन व आराइश और मरम्मती काम का जायजा लिया। फ्लाईओवर की सड़क की कारपेटिंग की जा रही है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुशीर कानून हुकूमत सिंध के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने रात गए आई चंद्रीगर रोड का ये दौरा किया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा DG KDA, डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती और पीपल्स पार्टी के जो इलाकाई जो अहदेदारान हैं वो भी उनके हमरा मौजूद थे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सिटी स्टेशन फ्लाईओवर के जो तज़ीन और आइश और मरम्मती काम है उसका यहाँ पे जायजा लिया है। इस तमाम तर जो तामीराती और इसे मरम्मती काम में एक अच्छी बात ये आई है और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी अपने गुफ्तगू में कहा है कि फ्लाईओवर से गुजरने वाले जो तमाम जो तारे हैं उनको अंडरग्राउंड किया गया है। सिटी स्टेशन जो फ्लाईओवर की तज़ीन और आराइश है उसको मुकम्मल उसके करने के हवाले से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपने उसमें बताया। उनका कहना था कि जो ब्रिज है उसकी सड़क की जो कारपेंटिंग है वो भी की जा रही है, जबकि ब्रिज पर की जाने वाली लाइटिंग है वो उसकी वजह से एक खूबसूरत जो मंजर है वो पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि चंद माह कबल इस ब्रिज की जो तज़ीन और आराइश का जो फैसला किया गया था इसमें वो पूरी तरीके से जो तामीर नो है वो तकरीबन इसकी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर वो शहर के जो तरक्याती काम है वो जारी रखे हुए हैं और उनका शहरियों की जो खिदमत है वो पीपल्स पार्टी के जो नस्बुलैन है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान आपका। कराची के इलाके सोराब गोट के वकील पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसने के बाद पानी की फराहमी और पानी चोरों के खिलाफ सिंध सेक्रेटरीट के सामने पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा करने लगे और महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान की यकीन दहानी के बाद एहतजाज को उन्होंने खत्म कर दिया। हाथों में बैनर उठाए ये कराची के इलाके सराब गोट के मकीन जो शदीद गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरसने के बाद सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंच गए और सख्त एहतजाज किया। हसनाबाद चौक से मच्छर कॉलोनी तक नया लेन बिछा दिया। एहतजाज करने वालों में मलिक अफजल और दीगर ने कहा कि मुसलसल एहतजाज किया। वजीर आला सिंध और दीगर ने यकीन दिलाया, लेकिन वाटर बोर्ड इंतजामिया ने ताहल अमल दरामद नहीं किया। मजबूरन सिंध सेक्रेटेरिएट आना पड़ा। हमारा तस्लीम नहीं किया कि जमाली पुल से लेकर आला सफ तक नया पेप है। हमारा मुतालबा यही है, हसनाबाद चौक से मच्छर कॉलोनी तक नया पेप डालना है। अगर ये मुतालबा मंजूर नहीं हुआ तो आज हम इधर बैठेंगे तो कल हम करसास का रोड बंद कर लेंगे वाटर बोर्ड के सामने। इलाका मकीनों के एहतजाज का सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने नोटिस लिया और अफसरान की यकीन दहानी के बाद सराब गोट के इलाका मकीनों ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन इमरान खान के साथ आजाद रेडियो कराची। नौजवान तालिब इल्म जजलान की कत्ल का मामला मुकदमे की तफ्तीश CIA के हवाले करने का फैसला हो गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कत्ल की तहकीकात करेगा। पुलिस चीफ की जानिब से केस मुंतकली की हिदायत
हिदायत दी गई है। SSP SIU को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर करने की हिदायत दे दी गई है। जजलान को 25 मई को झगड़े के दौरान कत्ल किया गया था। मजीद तफसीलात जानेंगे दानियाल सैयद से। दानियाल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कायम कर दिया गया है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखें सानिया, 25 और 26 मई की दरमियानी शब कराची के सुपर हाईवे में निजी सोसाइटी में फायरिंग करके 18 साल नौजवान को मामूली तल कलामी पर फायरिंग करके कत्ल किया था और उसके बाद इसके अहले खाना की जानिब से ये एतराज़ात उठाए गए थे कि जो कत्ल की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी गई है वो अहले खाना के साथ ताउन नहीं कर रही है और केस को मजीद खराब करेगी, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल IG कराची की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी जो इस तमाम मौरिकात का जायजा लेती है और अब आज एडिशनल IG कराची की जानिब से मजीद इस केस की जो तफ्तीश है वो बाकायदा तौर पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तहरीरी नया हुक्मनामा सामने आया जिसमें एडिशनल IG ने SSP SIU को पाबंद किया है कि वो फौरी तौर पर जजलान कत्ल केस की तहकीकात गिडाफ इन्वेस्टिगेशन से लेकर कोई ऐसा अफसर मुकर्रर करें जो इस केस की राय जानिबदार होकर तहकीकात करे और मुलव्वस मुल्ज़िमान जो दीगर 2 मकरूह मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जल्द से जल्द अमल में लेके आ सके। जी सानिया। जी दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने दुआ ज़हरा की मुबैना अगवा के मुकदमे में गिरफ्तार मुल्ज़िमान को ज़ाती मचलकों के एवज़ रिहा करने का हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से मुमताज जमाली। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दुआ ज़हरा के अगवा से मुतालिक केस की समाअत हुई। केस में गिरफ्तार खातून समेत 12 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश कर दिया। मुद्दई मुकदमे के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि लड़की का बयान भी रिकॉर्ड नहीं कराया गया है। दुआ के वालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेटी का बयान अदालत में रिकॉर्ड किया जाए। कल हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी कि आप जो है उसकी 164 या मेडिकल जो आना था सर्टिफिकेट, वो मेडिकल को जो हमने चैलेंज किया है, मेडिकल आया था 16 to 17, तो 16 to 17 मीन्स ये मेजॉरिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी एक्ट जो है उसकी 18 ईयर और चाइल्ड रेस्टेंट मैरिज एक्ट बेस पे लगता है। कल ट्रायल कोर्ट के अंदर बच्ची को मूव किया गया था कि ट्रायल कोर्ट में बच्ची को यहाँ पे लेके आया जाए। हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, लेकिन आज पुलिस को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने बच्ची को सुबह ही ज़हीर के साथ जो है वो लाहौर मूव कर दिया है। यहाँ पे बच्ची का 164 का बयान होना था और ज़हीर का यहाँ पे पेश होना था। यहाँ पे बुजुर्ग खातून अदालत पेशी पर रो रो कर बेगुनाही की दुहाई देती रही। अदालत ने गिरफ्तार 10 मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया। अदालत ने मुल्ज़िमान का नाम मुकदमे से खारिज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुल्ज़िमान को ज़ाती मचल के जमा कराने और तफ्तीश में जरूरत पड़ने पर पुलिस से ताउन करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने निकाह ख्वाह गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह अली असगर को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुमताज जमाली, सिटी 21। दुआ ज़हरा और ज़हीर को लाहौर रवाना कर दिया गया। दुआ ज़हरा PK 302 से लाहौर रवाना हुई। पुलिस ने हिफाजती तहवील में लेकर दुआ ज़हरा और ज़हीर को एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया। कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस अफसरान की टीम भी मौजूद रही। दुआ ज़हरा की फैमिली का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पुलिस ने बच्ची को दारुल अमान से निकाल कर लाहौर भेज दिया। दुआ ज़हरा के वालिद का कहना है कि सिटी कोर्ट पहुंचने पर पता चला कि दुआ ज़हरा लाहौर पहुंच गई। चीफ जस्टिस साहब से अपील है कि वो सुमोटो एक्शन लें। रूसी कौंसल जनरल ने साबिक हुकूमत से सस्ते पेट्रोल की फराहमी से मुतल्लिक बयान की तरदीद कर दी। बोले सिर्फ बातचीत हुई थी, हतमी फैसला नहीं हुआ था। रूसी कौंसल जनरल का सस्ता तेल की फरहमी के हवाले से इमरान खान हुकूमत पर बड़ा रद्द अमल सामने आ गया। रूस के आलमी दिन की मुनासबत से कराची में तैनात आनरेव बोले साबका वफाकी हुकूमत से सस्ते पेट्रोल की फरहमी पर सिर्फ बातचीत हुई थी, ताहम हतमी फैसला नहीं हुआ था। It was announced that this agreement was signed. कराची में रूसी कौंसल खाने में मुनक्किद तकरीब के दौरान रूसी कौंसल जनरल ने यूक्रेन से जारी जंग पर भी खुलकर बात की। उन्होंने पाकिस्तानी सहाफियों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो खुद आकर जंग के हालात देखें और सच पर मबनी रिपोर्ट चलाएं। उन्होंने हर मसले का हल पुरअमन मुज़ाकरात को ही करार दिया। This is our life. This is our security, and there can be any compromise on that. If they are clever enough, they start normal negotiations today or tomorrow. They could do it on 23rd of February. All the proposals were on the table. Just to withdraw troops from Donbass. Stop shooting. Stop killing people. Withdraw troops. And we can sit and negotiate. They never trust clever people what to do.
रूसी कौंसल जनरल ने पाकिस्तान से दोस्ती को भी यादगार करार दिया। बोले मगरब के दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने बेहतरीन दोस्ती का हक अदा किया है। पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। I just said that visas are open. Please do come. And during my times in before, we have during the season, the high season, about 250 people per day who receive visas in Karachi. तकरीब के इख्तिताम पर सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में आर्नियो ने कराची को बेहतरीन शहर करार दिया। कहा यहाँ दोबारा काम का मौका मिला तो जरूर करूँगा। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने मकामी सतह पर चावलों की कीमतों में इजाफे की वजह को एक्सपोर्ट होने को मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं बसीम इफ्तिखार। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद अनवर मियां नूर का कहना है कि मुकामी मार्केटों में चावल महंगा होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं बल्कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी और सियासी अदम इस्तेहकाम है। सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से कमोडिटी के हर कमोडिटी के 70% जो है वो रेट बढ़े। उसमें भी स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट ने कोई एक्शन नहीं उठाए। स्टेट ने कहीं भी मार्केट को जो है वो सेट नहीं किया। महमूद अनवर मियां नूर का कहना है कि चावलों की रिकॉर्ड सतह पर 2 अरब डॉलर्स की 4 मिलियन टन की एक्सपोर्ट हुई। ताहम ईरान और अफगानिस्तान चावल स्मगल होने से 1 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। इस साल जो है वो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है और वो 4 मिलियन टन से भी ज़्यादा है। और जो ज़र मुबादला है, जो आपको पता है कि सब पाकिस्तान में जो क्राइसिस है फॉरेन एक्सचेंज का, तो टेक्सटाइल के बाद जो है राइस सेक्टर को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फरमाई है। जो मैं ये सारे राइस एक्सपोर्टर्स को ये क्रेडिट चाहता है कि वी हैव क्रॉस द टारगेट ऑफ 2.5 बिलियन डॉलर्स। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन ने बताया कि महकमा ज़राअत सिंध के ताउन से 22 करोड़ रुपए की लागत से एक ऐसा इदारा बनाया जाएगा जहां चावलों के बीज समेत दीगर खाने की अशिया की पैदावार बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।